के साथ साथ बुलाना चाहूंगा अक्षय ओबेरॉय को, ladies and gentlemen. And with these two superstars, यहाँ बुलाना चाहूंगा the very gorgeous, the very talented Urvashi Rotela को, ladies and gentlemen. Give it up for her. Looking as gorgeous as ever. And of course, दो handsome मुंडे यहाँ पे पहुंच गए. Very big congratulations on this. Akshay, this is looking fab. And इतनी कैसे गलत चीजें कर रहे हो यार? अच्छे खासे. Sushi sir, nothing else. Not done, sir. मतलब इतना सारा प्यार ऐसे थोड़ी कर रहे हैं. Urvashi, you're looking as gorgeous as ever. And वो एक अलग लेवल पे जा रही है ना पिक्चर, वो इमोशनल बड़ा एक ग्राफ सा है, उसको भी बखूबी आपने निभाया है, तो congratulations on that. विनीत भाई, I'll start with you. Honest. And एक लिहाज से कोई बोलेगा कि it's a good thing, some people might say it's a bad thing. For me, it's a joy. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई दायरा नहीं है. तो अगर खास तौर से ये नेगेटिव जो रोल्स होते हैं, मैं बड़ा मासूम हूँ, मैं बहुत मासूम, मैं खुद बोल रहा हूँ अपने बारे में, मासूम हूँ मैं मुझे पता नहीं दुनियादारी क्या है. मैं सिर्फ एक्टिंग जानता हूँ, एक ही काम जानता हूँ, पैशन से करता हूँ वो काम. तो जब मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करता हूँ तो अपने बारे में जानने लगता हूँ. तो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सेल्फिश कारण है उसका, कि मैं अपने आप को डेवलप करूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, और मैं जितना अपने आप को समझूंगा एज ए ह्यूमन बीइंग उतना बेहतर एक्टर बनूंगा. तो मेरी कोशिश वही है कि हर फिल्म में जाऊँ और एक्टिंग पे इजाफा करूँ. बाकी कुछ मेरे हाथ में है नहीं. सो दैट्स द ट्रूथ. कमाल है. जी प्लीज रोशी. इनफैक्ट मैं भी खुद अचंभित हो गई थी, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सीन्स थे. इनफैक्ट मेरे सामने ही अक्षय परफॉर्म कर रहे थे, तो जब मैं उन्हें देखती थी आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट ही वाज सो डीप इनटू इट, इतनी ज़्यादा पैशन के साथ, कि मैं खुद हो जाती थी कि ये कैसे कर पा रहे हैं. लाइक यू नो, फॉर हिम इट वाज जस्ट लाइक अच्छा ये करना है ठीक है, अच्छा ये करना है ठीक है. इट यूज्ड टू टेक हिम जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एंड ही यूज्ड टू बी लाइक दैट. तो कभी कभी मैंने इनको उस टाइम नहीं बताया कि बट आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस्ड. आई मीन जिस तरीके से इनका अलग कैमेलियन, इस तरीके से वो चेंज ओवर लेकर के आ रहे थे, परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग. मिल गया यहाँ से ही माइंड ब्लोइंग का डब्बा मिल गया. व्हाट एल्स डू वी नीड? बट ऑफ कोर्स जो स्क्रीन पे देखा, the one person who's responsible for all of it, ladies and gentlemen, the maverick filmmaker Susi Ganeshan साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. वेलकम सर. सीटियां भी बनती हैं सर, ऑफ कोर्स बनती हैं. So thank you so much and welcome. Here you go. Congratulations on this, sir. Thank you. Response तो आपने देख ही लिया यहाँ पे, है ना? Right before the event, sir was briefing me और वो passion दिख रहा था. You know, this is what we were discussing अभी team के साथ, कि he's so passionate about this project and of course जो भी वो करते हैं. So talk to us. First things first. Why Ghuspatia, sir? What made you say that this is what I want to do? See, I pick up my stories from the newspapers. If you read newspaper, just n number of this, Ghuspaitias every day you can see in the paper. Either you are just building or without your permission, anybody can enter into your life at any time. So 24 hours our roof is open. So anybody can jump in, that they can intrude in our life without knowing that they are intruding. So that is a basic thought I picked up. And especially this particular character, this protagonist, Vinit Bhai just played. It's a real character. Just one of my close friend. He was working in the department. He's an inspector. Almost in the intelligence department, he worked for more than 12 years. When he narrated the story, I was actually, I completely lost faith in this, this system. Especially just, if you allow me to overhear your conversation for 24 hours, I will tell you who you are. That is, the color of the person, the real person will come out only just hearing the 24-hour conversation. So when he narrated the story, whatever the image I got about the people in that particular place, completely changed. So one day just I asked myself, okay, when you hear somebody's secret, it's enjoyable. But when the secret is related with you, how will you enjoy? That's a story. So that is where that story develops. I think then you wait for the film. Just one little question, sir. Concern बोलूँगा मैं तो ये. Do you still have like access to that 24-hour thing? No, actually, no. No.
See, basically, just it's a, even you can think about it. No, probably if you are you willing to hand over your phone to someone? No, sir, never. So that's always no. That if you see the film, I think you'll be scared to touch your phone. That is the impact of this film. Right. That's another thing, you know, that we have to talk about, and that is the faceless campaign. What made you say that? Of course, I don't want to use my actors. We have to go faceless for the initial bit of this campaign. That created a lot of buzz. Yeah. Basically, I just that appreciation goes to my marketing team and my PR. Absolutely. It's a brilliant idea. Basically, that what I really thought that before getting into the theatre, because no, the people should know that the intruder means faceless. Oh, wow. See, any intruder, if he comes with a face, he's not being called as an intruder. So just for this Kushpetiya, just title itself, we decided this is the way we have to go about it. I think it really worked well. So people are so much curious about that what is going next. Right. We till they open this poster, so people are just guessing that who's this Kushpetiya, and especially that black sheep. See, everywhere, in every family, society, everywhere there will be a black sheep just sitting and just watching you. So that is a reason also just that we introduced that poster first and then followed with this one. घर का भेदी लंका ढाई होता है ना, उसका reprise है ये, एक अलग level पे है ये. Okay, so I'm sure this must have happened to a lot of you. सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस टाइप की चीजें होती हैं, जहाँ कोई हमको स्टॉक कर रहा होता है. Yeah, of course we get these calls, right? Scammers के calls यहाँ से वहाँ से. जितने फ्रेंड्स हैं हमारे यहाँ पे मीडिया से, उनमें से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ? If you'd like to share with all of us. Oh yes, Rahul bhai, come. Rahul from the Filmy Charcha, see. And who else? कोई Runa ma'am, please, yeah. So come. आ जाओ. अरुण के साथ हुआ नहीं, अरुण करते हैं. ये चीजें जिसके साथ होती हैं बहुत समय तक तो वो किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि समझ नहीं आता इस चीज से डील कैसे करना. Absolutely. So Rahul, we'll start with you. What is it? क्या हुआ था? मैं देता हूँ एक से. जी. ये हाल फिलहाल में ये स्टोरी है. मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे पापा के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि बच्चन साहब के वॉइस में AI का वॉइस जनरेटेड कि मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ KBC से, आप जीत चुके हैं 1.5 करोड़ रुपए. तो पापा का कॉल आया मेरे पास कि ऐसा फ्रॉड होगा, स्कैमर होगा. तो उन्होंने बोला नहीं, स्कैमर तो लग नहीं रहा है, मेरा नंबर भेजिए मुझे. तो मैं बात किया तो बोलता है कि मैंने क्या है बताओ. तो बोलता है कि 20,000 आपको पे करना है, प्रोसीजर ये है और फिर आपको 1.5 करोड़ मिलेंगे. मैंने बोला कल बात करना. तो फिर कल कॉल आया. तो मैंने बोला एक काम करो भाई, 1.5 करोड़ तुम रखो, कोई नया बिजनेस करो, कम होगा तो 20,000 मैं दे दूंगा. एंजल इन्वेस्टर बन गए आप तो स्कैमर्स के साथ. कमाल कर रहे हैं. गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड यहाँ बात है, बहुत सारे रेगुलर चल रहे हैं KBC के नाम पे. मैंने तो पॉसिबली आई एम जर्नलिस्ट, थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोगों में आई एम श्योर ज़्यादा ही होता है, बिकॉज पढ़ लिख के ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं. एक बार मुझे UK से फ़ोन आया एंड फॉर सम एक वो होता है ना फाइनेंस एंड ब्रोकरेज, उसके लिए. एंड सर्टनली जर्नलिज्म और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं होता. बैंक में भी हम लोग ब्लैक लिस्टेड होते हैं कि अच्छा जर्नलिस्ट है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपके घर वालों को, आपको हम नहीं समझा सकते हैं. सो उनका फ़ोन है, मेरा सस्पेशन बढ़ा. मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नहीं, मुझे दोस्तों से. मैंने कहा मेरा कोई दोस्त इन सब चीज़ों में नहीं है, आपको नंबर कैसे मिला? आपका UK का नंबर क्यों? क्योंकि मैं UK में रहता हूँ. मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, आप इंडिया में फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आप UK के लोगों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? नहीं, आई एम जस्ट वर्किंग. मैंने कहा नहीं, आप काम क्यों कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अगली बार फ़ोन किया तो सीधे पुलिस का नंबर जाएगा. और 2 महीने से फ़ोन नहीं आया है. तो मैंने धमका के उसको छोड़ दिया. उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. अब इस टोन में आपने बोला होता पुलिस का नाम भी लेने की जरूरत नहीं थी मैम. वो वैसे ही डर के उसने कहा इनको नहीं करना है. थैंक यू सो मच. बाय. Yeah, hi, my name is Sohail and I'm from Indian Bollywood. मेरा कुछ थोड़ा अलग वाला थोड़ा हिसाब किताब, मतलब I can say like little bit similar कह सकते हो. Like we are in the media, we are on the social media actually. Someone randomly, you know, like एक video call आता है and when you just try to see, pick up कर लेते हो and suddenly, you know, you get to see a female who is, you know, not a very appropriate position, you know.
and immediately I just cut it because I got it home हो गया तो ऐसा था. और next day I received a call actually saying showing me a screenshot. I haven't said this thing to anyone except my wife. That was later on. Seriously, मतलब ये it was a very shocking thing, you know, at that time. मतलब हमको लगा कि सुना तो बहुत सा था crime, मतलब you know cyber crime इस तरह से होता है. And the next day like that person demanded कि मेरा फोन टूट गया है और मेरे लिए आप फोन खरीद के दीजिए. मैं said कि नहीं है. Then वही वाला ऐसा हिसाब कि आप दीजिए. I said okay then you can like अगर if you want to it. I knew it कि इस तरह से होता है बहुत बार. And I had just spoken to one of my friend also for it. तो उन्होंने बोला था देखो अगर आपको ज़्यादा ऐसा रिपीटेशन होता है तो just let me know. And I did not you know मतलब मैं घबराया नहीं इस बात से. तो फिर वापस सेकेंड टाइम कॉल आया पर फिर तीसरी बार नहीं आया एक्चुअली. तो यू नो आई थिंक सो कि दिस वाज समथिंग व्हिच वाज रियली बैड एंड ये चीज़ बहुत होती है यू नो. तो ये फिल्म से अगर हमने जो देखा है इस तरह के बहुत सारे किस्से हो गए और बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा और बहुत से लोग इसके शिकार हुए भी हो गए. बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं. आपकी कहानी के साथ बड़े सारे लोगों ने रेजोनेट किया है. आई एम श्योर बहुतों के साथ हुआ. वेरी कॉमन थिंग एक्चुअली बिकॉज़ मेनी टाइम्स यू डोंट नो suddenly like एक कॉल आता है and you just try to pick up and एकदम ही you know on the screen you get this kind of image actually. तो एक्चुअली स्कैमर्स जो है वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से कुछ नया डिजाइन करते रहते हैं और अचानक समझ में आता है अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं, अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं. मतलब अभी तो एआई का जमाना है ना, तो अभी एआई में हमने पैर रखा है. अभी दूसरा कदम किधर लेके जाएगा हम लोगों को किसी को पता नहीं. ये हो सकता है हम फोन उठाएं और हमें सामने से आवाज सुनाई दे हमारी वाइफ को. फिर दूसरा नंबर कि हमारा फोन ही हैक हो चुका है हमें पता नहीं है. दूसरा नंबर घर पे लगाया किसी और को पूछने के लिए फैमिली मेंबर को. उधर से आवाज उसी मेंबर की सुनाई दे रही है बट शायद उन लोगों को ना पता हो. तो हमें पता नहीं हम किस दौर में जा रहे हैं. तो ये फिल्म कहीं ना कहीं हमें उस खतरे से एक आपको चिता रही है कि जग जाओ. Absolutely. And the best part is, Sohail bhai, as you said, head of department को आपने बता दिया. So it's always, you know, it is better that you talk to someone, right? Susi sir से भी this is what we were discussing, that in such cases you should always talk to someone. At least share करेंगे तो शायद solution निकल जाए. जो आपने बोला थोड़ा difficult होता है. But thank you so much for sharing all this. आप भी कुछ शेयर कीजिए, आपके भी होंगे कुछ इंसिडेंट. मेरे साथ तो नहीं, बस पैसे मांगने के लिए फोन आते हैं ऐसे. पैसे में नहीं देता किसी को. Thank you so much and wish you all the best. Thank you. You can take the mic. Talk to us about the trust versus technology, because jitna we are you know with each and every advancement in technology we're losing out on that trust factor, right? As sir also said, line है उसमें बड़ी कमाल की कि पहले तो चोर उचक्कों को ऐसे पकड़ना पड़ता था, अब ऑनलाइन पकड़ना पड़ता है. तो talk to us about that, sir. See, basically, sometimes I feel like, you know, we are living in a jungle. So, though we are human beings, but if you just, I mean, this is the story, if you travel with the story, you feel like, you know, all these animal characters just it's there. That is there one shot, you can, the film, no, you love it when you see the film. Why the shot is there, if you see the film, that will be incorporated into this film, that, you know, everywhere, even this is a common, if you see that they're, you know, standing in a signal only. They are not, it's not necessary to be a rich or a powerful person. Even the common man, they have multiple faces, you know, in the private space. So that is how just the basic core of the film is based. And especially what is the technology versus this trust. It may be, 100 years back, even that this kind of people, they actually lived. But the technology only made us to realize it actually. See, otherwise that nobody knows about it. Even just gossips, It's basically what we are talking about, the gossips. Normally, it's when human life was just, from the day, there was a gossip. But there is no system to just capture the gossips and give it to someone. Now, the system is there. You can tape the phone. Now you can record somebody. If you put some small camera in anywhere, you can record, 24 hours. There is not even one frame that you're going to miss it. So these kind of technology actually make the trust. The gap between the trust and technology, because that happens. Because where the human faith to the trust,
because if you see that, oh, this guy is recorded me, that's it. The trust broke. Basically, we have to be little more careful when you are moving around this social space. That is the biggest, I think, the social awareness we are creating. It's not that we are not going to preach it, but through these characters, if you just feel this character, then you will understand that how should be very safe in the social media. I'm sure, sir. ऐसे ही देखने को मिलेगा. It's time for your questions now, I'm sure. And before that, yeah, we'll do a quick photo op. Yeah. And one more thing, Sir. I should thank my producer Ramesh Shetty sir, because he is the man who really supported this concept. And how will I say? See, today that independent filmmakers are diminishing. Just the community is slowly going down. Where this kind of a content and strong performance-oriented film should be supported by the person like Ramesh Shetty Sir, sir. please come. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, would like to have you on the Yes. stage. And, M. Ramesh Reddy Saab, ladies and gentlemen, please. And Manjari, my wife. Of course. She is the producer. She actually, put up all the efforts and everything. I'm loving the look on her face. Yeah. Please, Manjari, we want you on this stage. Please. Yes. And one more thing, just my close friend and Sarita madam. Sir. Because of you, I think just we really just have this great effort that is done by madam. Thank you, ma'am. Thank you so much. We'd like to have you on the stage, of course, for that picture. Thank you. Yeah. We'll have a quick photo op with the team, please. And then we'll take the questions. Ji. Close come. This year sir बोल रहे close come. We'll have this one group photo and then. बस थोड़ा आगे आ जाएंगे सर everyone. थोड़ा और आगे आइए. बस. Managed to pull this off. And उससे भी पहले इस पूरी फिल्म के बारे में what was that one thing that hit you कि यार मुझे ये तो करनी ही है. ये आज की सच्चाई है और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अनुभव उन्होंने किया होगा कि हमारी लाइफ में पहले क्या होता था कि घर का दरवाज़ा होता था, दरवाजे से लोग घर में आते थे. अभी दरवाज़ा जो है हमारा फ़ोन है और फ़ोन के थ्रू हमारे घर में आ जाते हैं और इतना कुछ जान जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी उथल पुथल मचा के रख देते हैं. तो ये फिल्म उस दुनिया में लेके जाती है और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज हम सब जानते हैं कि एक डिजिटल रिवोल्यूशन के दौर को हम सब ने देखा है, अभी भी देख रहे हैं और उसका जो साइड इफेक्ट है, जैसे दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो जब आपकी ज़िंदगी में कहीं हावी हो जाता है तो समझ नहीं आता कि निकलें कैसे. बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, बहुत कुछ ऐसा सीख के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे होते हैं और अचानक जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो समझ नहीं आता कि इससे डील कैसे करना है. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी एंड थैंक्स टू सुसी सर कि इस सब्जेक्ट पे उन्होंने एक पूरी फिल्म बनाई है जिसे आप देखेंगे तो समझ में आएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. और हर कोई पहले ऑनेस्ट ही होता है, बाद में जिंदगी के थपेड़े उसे थोड़ा ऑनेस्ट करप्ट की तरफ लेके जाते हैं. तो मेरे किरदार की कहानी कुछ ऐसी ही है. थैंक यू सो मच. एक बड़ी कमाल की चीज थी यहाँ पे, इतनी कमाल की कास्ट होने के बावजूद ये कैंपेन ना फेसलेस सा था. हमने देखा कि चेहरे नहीं दिखाए जा रहे थे इन बेहतरीन एक्टर्स के. एंड आई थिंक दे वर वेटिंग टू शो इट टू यू अपने कंटेंट के जरिए. और ऐसा क्यों किया था, क्या फॉलो कर रहे थे, आई टॉक टू द डायरेक्टर फॉर श्योर. लेकिन उससे पहले देयर वर अ फ्यू लकी पीपल हु गॉट टू वॉच द ट्रेलर बिफोर हैंड. कुछ एक फिल्में लगी हैं उनके साथ ये ट्रेलर चल रहा था. दे वर वेरी एक्साइटेड. वो लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं कि यार हमको मजा आ रहा है, फुल ट्रेलर कब आएगा. उर्वशी फॉर यू ग्राफ है इस कैरेक्टर में. फर्स्ट हाफ में यू लाइक दिस हैप्पी गो लकी चल रहा है, आप तो मेरे पति हैं, वो वहां बॉयफ्रेंड है एंड ऑल दैट. सेकेंड हाफ में वो एक अलग शेड्स आ जाते हैं. टेल मी इमोशनली कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए. जी, जो हमारी फिल्म है घुसपैठियाँ, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे आए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया टू ऑल द मेंबर्स ऑफ मीडिया एज वेल. जो ये फिल्म थी ऑब्वियसली इस फिल्म में जो है उर्वशी एक बहुत ही अच्छा एक्टिंग रोल है. आपको बहुत ज़्यादा सब्सटेंस दिखेगा, परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल है.
और इस फिल्म की जो टाइटल है घुसपैठियाँ, तो जैसे हम सभी लोग इकट्ठे आज यहाँ बैठे हैं, तो होता नहीं है कि एक टीम मेंबर हो या कुछ भी हो, एक टीम हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, तो एक घुसपैठिया कैरेक्टर ज़रूर होता है। उसी तरीके से हमारी फिल्म में भी यही दिखाया गया है। और 9 अगस्त को रिलीज़ होने के लिए जा रही है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर ऑफ कोर्स, बिकॉज वो अपने हस्बैंड से ऑफ कोर्स प्यार करती है। आई मीन यू विल गेट टू सी इट इन द मूवी। मैं सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देना चाहूँगी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एक सेकेंड बहुत ही ग्रिमिंग है फिल्म, और कहीं भी ये एहसास नहीं होगा कि यू नो हमेशा जो भी दर्शक लोग हमारे ऑडियंसेस फिल्म देखने के लिए जाएंगे, उनके लिए हर पल बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ आवर डायरेक्टर मिस्टर सुसी गणेशन जी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। ही हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली एवरी सिंगल डे एंड नाइट फॉर दिस फिल्म सिंस हमने 2019 में ये स्टार्ट की थी। आज 2024 आ गया है और अब जाकर हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो हमें आप सभी के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद की ढेर सारी ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं हमारे जो इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर्स हैं उनके ज़्यादा आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम एंड थैंक्स टू देम, रमेश रेड्डी जी, मंजरी जी, ज्योतिका जी, टू ऑल एवरीबडी हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस फिल्म। एंड I mean, I just want to say, I think कोई भी कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये जो आभा का कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, डिफ़िकल्ट था। बट जब आप इतने तुर्रम खां एक्टर्स के संग काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक विनीत कुमार सिंह एंड अक्षय ओबरॉय, तो कोई भी चीज़ जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के संग ये बात बोल सकती हूँ कि आई वॉज नॉट जस्ट वर्किंग विद ग्रेट स्टार्स, but I was working with terrific and great actors and even greater human beings. So thank you so much, Vineet and Akshay, for being, for being there all throughout. Thank you. Thank you so much for sharing that, Urvashi. एक चीज मैं जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा कि उर्वशी को इस तरीके के किरदार में आपने आज से पहले कभी नहीं देखा। I'm sure. Akshay, this one's for you. Talk to us about this character. And उससे भी पहले, when you got this, है ना? Because वो एक quintessential hero वाला और इतनी कमाल की fan following है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा grey shades, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं. So were you skeptical? Were you like नहीं ये क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ? तो talk to us about that. First of all, good evening everyone. Thank you for coming. I know कि बारिश पड़ रही है, ट्रैफिक बहुत है, पर आप लोग आए, वो बहुत बड़ी बात है. Thank you. So first of all, यार बड़ी क्लीशे सी बात करूंगा। मैं लेखक नहीं, जैसे विनीत है, और मैं इतनी बढ़िया बातें नहीं कर सकता कि उर्वशी करती हैं, बट क्लीशे बात करूंगा एक, स्पेशली इस फिल्म में, हर फिल्म में ऑब्वियसली यू रिलाई लॉट ऑन योर डायरेक्टर, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, बट इस फिल्म में खास तौर से आई रिलाइड ऑन वन मैन, सुसी गणेशन, फॉर एवरीथिंग। अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मेरे लोग यहाँ पे खड़े हैं जो मेरे स्पॉट बॉय वीरेन ऋषि जो मेरे हेयर मेकअप करते हैं, वो भी खुद मुझे बोलते हैं कि अगर सुसी सर ने वो नहीं करवाया होता ना तो इतना मजा नहीं आता। सो इट्स ऑल हिम एंड आई रियली मीन इट इन दिस, पर्टिकुलरली इन दिस फिल्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। सेकेंडली, यार मैं एक एक्टर हूँ, मेरा कोई इमेज नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ कि मेरी लाइमलाइट है और लोग ऐसे किरदार एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे। तो मेरे एक्चुअली एज एन एक्टर बहुत आज़ादी। दिस आइडिया जैसे नितिन ने तो हमसे पूछ लिया कि कभी हमारे लाइफ में इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल एक्चुअली, when being an actor, maybe it could be in a form of a casting couch or a filmmaker has used you all, maybe any sort of a thing. So can we start with you, Akshay, and then सोहेल, आप कहाँ हो? मैं यहाँ पर। आपकी स्टोरी कितनी अच्छी थी, आप क्यों कर रहे हो ये कंपैरिजन? आपकी स्टोरी बढ़िया थी, सब लोग इकट्ठे आपको तालियां बजा रहे थे, एंगेज हो रहे थे, but yours was, how can we outdo your story? And I just want to hear from you all, have you all experienced any? So because आप पूछ रहे हो, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, but हाल ही में मेरे बहुत अजीज दोस्त के साथ हुआ है, और वो एक्चुअली पली बड़ी अमेरिका में है। she's a white lady and doesn't really speak too much English, हिंदी। तो रिसेंटली उनको फ़ोन आया और ऐसे बातचीत हुई, और फिर बैंक अकाउंट और ये पासपोर्ट और ये वो, और उनको बताया गया कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया से, आपको वापस अमेरिका भेजा जाएगा। सो वो घबरा गई, और ऐसे, एंड इट वाज क्वाइट अ बिग एफर्ट, दे हैड अ लॉयर, दे हैड सोशल मीडिया पर्सन, दे हैड द पुलिस, साइबर क्राइम पुलिस, तो एलैबोरेट अफेयर था ये।
और मैं परसों ही ये कहानी सुन रहा था और मैंने कहा सुसी सर की कितनी करेक्ट टाइम पे फिल्म रिलीज हो रही है, बिकॉज ऐसी चीजें होती हैं. एंड शी वाज ऑन द फोन फॉर 7 hours विद दैट पर्सन. सो शी वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू, मतलब अभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देने वाली है, एंड देन शी रियलाइज कि मेरे साथ गेम खेला जा रहा है. So they prey on these, kind of, they know people's fears. These kind of people are very, and that was my job as an actor कि इन लोगों को study किया जाए. और ऐसे लोग होते हैं और manipulative लोग खास तौर पे आपके fears पे खेलते हैं. हम सब ने देखा होगा in different ways in our lives. But ये बहुत serious चीज है और ऐसी चीजें हो रही हैं लोगों के साथ. Susi Ganeshan, yeah, this is. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि एक वेस्ट में एक सिंगर है, काफ़ी ज़्यादा नाम है, डेविडो. नाम बताओ. पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं. तो वहाँ उससे आई गॉट अ मैसेज कि डेविडो बोल रहे हैं कि उर्वशी अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड दे दो व्हाट्सएप में. So I was like कि Amazon gift card, I mean why would he ask for I think 25 rupees का Amazon gift card है? But depends आप कितना लगा रहे हो उसके ऊपर. Exactly. So हाँ, so that is also a scam. But then again हम सब काफ़ी busy चल रहे थे अपने film shoot में and all वो but then later on I got to know कि Amazon gift card के through भी scams होते हैं. So yeah, I mean it's via that link में press करके then you get caught. Urvashi, Lipika here. Is this a D-glam role that you are playing? As Mrs. Ganeshan was saying that. जी हाँ, इसमें आप जब घुसपैठियाँ देखेंगे तो कई सारे सीन्स हैं जिसमें एकदम with no makeup. I mean, Susie sir was very persistent. I have to interrupt. She was so upset with me. Yeah. She doesn't want to even remove this lipstick and all. So we actually made her just come, just 5 minutes, remove all the makeup. It's a different experience for her. But after that, actually, she really loved the look. नहीं एग्जैक्टली कई सारे सीन्स हैं जिसमें कम्प्लीटली रॉ लुक है, विद नो मेकअप लुक है, और एक अलग सूसी सर ने बहुत ही डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है मुझे इस फिल्म में एज अ कैरेक्टर आभा. तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा. Okay, Susi, I don't know. Is this your second in the? Yeah. After Shortcut Romeo, this is my second movie. Yeah, this is your second. Yes. How do you look at your transformation from South films to Hindi film now? See, actually, basically, everybody just want to just go out of their boundary. It's very comfortable in your own language. That is more comfortable for any director. So now it's become like it's a global village. So any creator just they move out of their boundary, and then they make the other language more easy and this thing. Basically, Hindi is like the spread is huge. So every filmmaker they want to show their film to n number of audience. So this is the best way. So I just shifted my base from Chennai to Mumbai. I think we'll achieve this. Urvashi Ungal the first choice இருந்த yeah. Susi, Urvashi Ungal the first choice இருந்த yeah. Yeah, see, yeah. See, basically, I'll tell you. See, yeah means why? Yes. So, see, basically, every director they want to do something different. That's the urge. Every director, every film director, whether it's a successful film or any film, if you take, some one portion, as just they ask for their conviction, they want to do something different. So I choose Urvashi for this Abha character because whatever that her image or whatever that look of that Urvashi is outside is different. I want to change the color of that Urvashi. If you see the film, you will really appreciate my intention because that should be the unique thing. In fact, when I think I should mention that Anil Radhani sir, he is the distributing our film. He asked me, after seeing the film, he liked the film very much. But he हो जाता है ना जहाँ घुसपैठिया घुस जाता है तो ना तो वो अपने घर में किसी से कह पाता है ना दोस्तों को बता पाता है क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी अभी इन चीजों को डील करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं क्योंकि हाँ
मैं यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है जो अकेले कहीं पड़ गया है, उसको ये हिम्मत अगर मिलेगी कि लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो वो अपनी बात कह पाएगा। अदरवाइज बहुत तकलीफ होती है अगर अंदर ही अंदर आपको किसी चीज को लेकर के घुटना पड़ रहा हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं खा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये फिल्म ऐड करती है कि एक माहौल ऐसा बने कि आप कह सकें, और इसमें भी कैसे समस्या सॉल्व होती है या नहीं होती आप देखिएगा और बताइए। Hello, hi, Prachi from Mixler. I have a question for Akshay. Akshay, as you rightly said that you look very innocent and you're a very innocent person as well. And you've played really different roles. But इसमें आप एक villain की तरह और एक बहुत ही villainous and very manipulative villain, I should say, आप play कर रहे हैं. तो how tough was it to play this and how did you prepare yourself for the role? Hi Prachi, thanks for your question. You know, I feel like yes, you're right. I am that kind of person. But हमारे अंदर सब कुछ है. हर इंसान के अंदर सब कुछ है. You have to tap it. And you need a good director for that. You know, because अगर ये villainous role किसी और के हाथ में होता है, कोई दूसरे director के हाथ में होता, शायद इतना उभर के नहीं आता. या मैं नहीं कर पाता, मैं connect नहीं कर पाता. I think he saw something maybe with my eyes that he could play with. You know, him and I don't see him anymore, but Setu Sriram ji, he's our DOP, but he knew exactly how to shoot my face. मतलब ये बहुत कारीगर लोग हैं, सालों से फिल्में बना रहे हैं, so they know कि अच्छा इस बंदे की sharp angle है, आंखें वैसी हैं, so he used to shoot me in a tele lens. So you know, so much credit actors walk away with. And yes, I mean actors like these, we put our heart and soul into it. जितना हम लोग कर सकते हैं हमारी तरफ से, but बाकी सब technicians के हाथ में है. You know, we get all the credit, but actually the credit is theirs because they shot it that way. They lit my eyes that way. A certain sound effect came, you know, at that time. The styling is done accordingly. The only thing I could do is truthfully portray that part and truthfully say the dialogues. And as I said, हमारे अंदर सब कुछ है. इंसान के अंदर सब कुछ है. हर एक emotion है इंसान के अंदर. You have to find it. So I tapped into something, you know, that I connected with. And that's पूरी फिल्म में वही मैंने write किया है. So I try to bring that every day. Thank you. Urvashi, to your right. Yeah. Urvashi. Yeah. You know, recently कुछ एक videos बाहर आए थे actresses के deep fake video के AI के through बने थे. As being an actress, आपके लिए काफी आज stressful होता होगा कि इस तरह की चीज आ जाती है, you know, वरना किसी को पता नहीं चलता कि real क्या है, fake क्या है. जैसे कि सभी जानते हैं कि जो हमारी फिल्म है घुसपैठियाँ, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट वर्सेस टेक्नोलॉजी. और ऑफ कोर्स जिस दिन वो क्लिप बाहर आया था तो आई वाज अपसेट ऑफ कोर्स दैट डे फॉर श्योर. बट धीरे धीरे यू नो एंटायर ऑडियंसेस एंड लाइक सभी लोग आई रिसीव्ड माय फोन वाज रिंगिंग नॉन स्टॉप. सभी लोगों को एक तरीके से दे स्टार्ट परसीविंग कि वही हमारी फिल्म उस बारे में है. आई मीन सब लोग सही तरीके से नहीं समझ पाए कि भले ही वो क्लिप को मीडिया ने जिस तरीके से लिया, आवर फिल्म इज नॉट अबाउट दैट. हमारी फिल्म और भी मुद्दों के बारे में बात करती है और साथ ही साथ वो जो क्लिप आई है इट्स एनी विच वेज इट्स नॉट फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ, इट इज़ पार्ट ऑफ अ फिल्म घुसपैठियाँ. तो और ज़्यादा जानने के लिए ज़रूर देखें घुसपैठियाँ 9th of August. Hi there, I am Shruti Sinha from Bollywood Chronicle. My question is for Urvashi ma'am. Ma'am, आपका इस मूवी का एक इमेज काफ़ी वायरल हुआ था एंड ऋषभ पंत के साथ उसको काफ़ी रिलेट करके वायरल किया गया था. तो how do you relate when such things comes to you? Can we क्रिकेट की बात करेंगे ना जब वापस से वर्ल्ड कप आएगा. I think right now we're talking about this movie, ma'am. तो मैं प्लीज गुजारिश करूंगा, है ना. वायरल तो कुछ भी जैसा उन्होंने कहा है, कोई घुसपैठिया चीजें कर देता है. This is what I feel. I think you'll excuse us on that question. Sorry. Thank you so much. जी. Your left, Vineet. Your left. Rahul from the Filmy Channel. मेरा सवाल आप तीनों से है, अक्षय, उर्वशी. कहा जाता है कि सिनेमा समाज को आईना दिखाती है और बहुत ऐसी फिल्में होती हैं, कभी सलमान खान तेरे नाम में बीच का मांग वाली बाल आते हैं तो लोग वैसा रखना शुरू कर देते हैं. कभी कोई फिल्म में कुछ गलत चीज़ें दिखाती है फिल्में तो लोग उससे अवेयर होते हैं, रोकते हैं खुद को कि गलत काम नहीं करनी चाहिए. जैसे एग्जाम्पल इस फिल्म से, एक तरफ ये फिल्म लोगों को अवेयर कर रही है, दूसरी तरफ फिल्म हो सकता है स्कैमर को कॉन्फिडेंस
रेफरेंस भी दे कि उसकी बायोपिक बन रही है, वो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। तो क्या फिल्म से कभी आपके ऊपर कोई अच्छा असर हुआ है कि आप पे पॉजिटिव इफेक्ट, और कभी फिल्म से कोई बुरा असर कि आपने वो काम करना छोड़ दिया हो, या कभी माइंड में भी आया तो नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट किसी भी फिल्म से? फिल्म का असर हमारे देश में कुछ ज्यादा ही पड़ता है और लोग, मैं तो मतलब इस फील्ड में हूँ ही इसी वजह से, बिकॉज मैंने सिनेमा देखा। अगर ना देखता तो शायद ये सपना मेरे अंदर ना आता। तो आपकी पूरी जिंदगी तय कर सकता है सिनेमा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लेते हैं। रह गई बात इस फिल्म से जो गलत प्रभाव पड़ने की बात अगर करूं, तो फिल्म आप देखिएगा तो परिणाम देख के समझ में आएगा कि रास्ता कौन सा चुनना चाहिए। बाकी रामलीला जब चलती है तो उसमें रावण का भी किरदार है ना, तो रावण ने बहुत सारी ऐसी चीजें भी की हैं, लेकिन जब रामलीला खत्म होती है तो एक सीख होता है ना कि कहानी एक सबक दे के जाती है, तो वैसे घुसपैठिया भी एक सबक देती है, तो वो सबक मायने रखेगा। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि आपने सीरियल किलर के ऊपर एक फिल्म देख ली और आप सीरियल किलर बन गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब थोड़ा अकल इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड यू नो, एज एक्टर्स एंड एज फिल्म मेकर्स वी आर ओपन टू डू एनीथिंग, तो ऐसा भी नहीं है। तो आई थिंक वो थोड़ा उस, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन को लेकर के, बिकॉज वो गलत प्रभाव तभी होगा जब कोई कमजोर मन का हो, और उसके बारे में एक्चुअली कंटेंट मेकर्स सोच नहीं सकते। कंटेंट मेकर्स को एज यू सेड कि आईना दिखाना पड़ता है सोसाइटी को, और ऐसे लोग हैं और ऐसी चीजें होती हैं। जब आप हमारी फिल्म देखेंगे, हमारी फिल्म का बहुत ही अच्छा एक सार है जो एंड में आपको पता लगेगा, तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या मैसेज मतलब आप उससे रिसीव कर रहे हैं हमारी फिल्म देखने के बाद। अभी कुछ देर पहले आपका डीप फेक, कुछ चर्चा चल रही थी डीप फेक वीडियो का, कुछ 4 दिन पहले आपके भी कुछ क्लिप्स वायरल हुए थे, उसके बारे में क्या आपका कहना है? ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ, वो हमारी फिल्म का घुसपैठिया का पार्ट है। Hi, myself Poonam. I am from Bollywood Teens Media, Guralakshmi magazine, and thank you, PR from Keshav ji has invited me from PR. This is a message to Manjari sir. Hello, sir, for you. I want to ask you the question. Hello, sir, I am here. Okay. So, sir, I want to ask. से देख नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, तो प्लीज राइट और लेफ्ट बोल दीजिए। Yeah, here. I'm here in the front. अदरवाइज घुसपैठिया के जैसे खोज रहा हूँ। That's nice. So I want to ask you, sir, one thing that sometime there are many people being trapped. You know, it always happens, like a lot of people being trapped, and sometimes people knows also that they knows like what is right and what is wrong, but still somehow they not able to figure out because that thing is not there, that control is not there in their hand. तो उस सिचुएशन में मतलब क्या होता है, एज ही सेड दैट यू हैव टू शेयर एंड talk to people and people start judging you without knowing the whole story, you know. People start like, you know, even they start taking opposite thing, like start blackmailing and taking, हाँ चलो अब इसको के साथ खेलते हैं, इसको मजा चुकाते हैं, इसकी बजाते हैं, you know, like that sort of stuff happens usually, you know, it happens. So I want to ask like in this situation, like this also film like of sort of like बहुत सारी ऐसी कहानी है जिसमें बहुत सारे ऐसे अलग-अलग scenes है, अलग-अलग stories है. I want to know that. What is that exactly the same? See, the sharing the details with whom? Yeah, with anybody. I mean, like Yes, it's yes, in that this stories also in this film is the same that we Yes, have to yes, share. yeah, We have to share yeah, people. that is where- But yeah. might be it create a side effect, bad effect. Maybe it create a bad effect. Maybe it create a bad effect or good effect. I don't know. But how it, like if you say things to people, how it will be. I'll tell you. See, this kind of a thing is like a double-edged weapon. See, Sorry? This kind of a sharing information Yeah. is like a double-edged weapon. You have to handle very carefully. Otherwise, what will happen? Yeah. See, that the person you are sharing, Yeah. that they may also take advantage of that. Yeah. So that is where this character victims, where that everybody is having a see our Indian system, everybody is having a family member. Why the suicide has happened? Tell me. Why the suicide has happened? Because they don't even trust their father and mother. See that the system, we are not allowing them to speak openly. That is the issue. Actually, that is where even if you see the film, even they are all matured, they are all educated, they are all, but still they have inhibitions which is. सही मायने में वैसे ही हुआ। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं। और अलग अलग नंबर से मुझे कॉल आते थे, आज रात को फ्री है, मैं बहुत अच्छे लैंग्वेज में बता रही हूँ,
उस वक्त उन्होंने मुझे जो कहा वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बताया गया, मिल नहीं तो सब कुछ वायरल कर देंगे हर एक जगह पे, हर सोशल मीडिया पे। और फिर मुझे लास्ट में बहुत बहुत सारे नंबर से कॉल आते गए, बहुत कुछ बोला गया, मिल सब कुछ कर हमारे साथ जो भी है। और आखिर में मेरा ATM कार्ड वो स्क्रीन पे मतलब स्क्रीन शेयर की और उसके पीछे जो CVV नंबर हम किसी को नहीं देते वो भी स्कैन कर लिया, वो क्रेडिट कार्ड उसका भी कर लिया और बोले जो भी पैसा है हमें दे। लास्ट में जब मैंने मानी नहीं कि मैं नहीं आऊँगी, जहाँ पर भी जो भी करना है आपको शेयर करना है, जिधर वायरल करना है, क्या करना है कर दो, मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की तुझे 10 लाख रुपए देंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। भगवान की दया से मेरी सैलरी नहीं हुई थी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे 10 लाख रुपए देते हैं, तो हमारे लिए काम कर। उस वक्त लेकिन 10-12 दिन मैं जॉब पे नहीं गई थी। फिर मुझे सामने से सर मैम ने कॉल किया कि क्यों नहीं आ रही है, ऐसी क्या बात है, जो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती है, ऐसा क्या हुआ, ट्रेनर के हिसाब से हमें छुट्टी नहीं मिलती जल्दी से। तो फिर उन्होंने वो मेरे घर पे आए और पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे निखिल सर का नंबर वगैरह दिया और उस माध्यम से मैं फिर अपने आप को बचा पाई। आई एम सॉरी। ये शेयर करने के लिए धन्यवाद। ऑफ कोर्स निखिल सर, आप तक वो आई जी, और जैसा हम जानते हैं कि यू हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और ये केस एक लोन स्कैम ऐप का था या क्या था? यस थोड़ा बताइए प्लीज। बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारे पूरे देश में बहुत तरीके के स्कैम किए जाते हैं, और आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो मैं बस कुछ एक गाइडेंस भी करूंगा। एक छोटी सी चीज कि स्कैम में फंसने के लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है जो वो लोग आपके आसपास क्रिएट करते हैं। जैसे पहले कोई एक लालच देंगे आपको कोई भी चीज का, चाहे वो दोस्ती का लालच हो या कोई लोन का लालच हो या कोई भी प्रकार का कि आपके अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे, या कोई भी एक लालच दे देंगे। उसके बाद आपको एक डर दिखाएंगे कि अगर ये नहीं किया तो आप ऐसे आप फंस जाओगे। तो आपका माइंड जो है ना, अचानक से वो साइकोलॉजी आपकी ऐसे यूज करते हैं कि आप फंस जाओगे। पहले तो आपको ग्रीड देंगे, उसके बाद फियर ऑफ लूज देंगे कि आप अपने अभी नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि शायद इस फिल्म में भी वो चीज है कि सोशल बर्डन, कि हम अपनी बात सिर्फ अपने तक रखते हैं। हम शायद जिसके साथ स्कैम हो जाता है, जैसे सोनाली जी ने कहा कि जब स्कैम हुआ तो 10 दिन वो किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि वी डू नॉट फील दैट कंफर्ट विद एनीवन कि ऐसा कभी किसी के सामने आ गया तो कैसा, मतलब मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। हमने कैसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे सुसाइड भी लोग कर चुके हैं। तो वैसे विक्टिम्स के लिए फिर वो जो स्कैमर्स है उनको पकड़ के वापस मुंबई लेके आना, वो भी हमने बहुत काम किया है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज है 3 जो ग्रीड, फियर ऑफ लॉस और सोशल मीडिया या सोशल बर्डन से थोड़ा दूर रहे, बिंदास रहे। आप अपने फैमिली को बता दीजिए कि जो आपके साथ हुआ था कि वो आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। अदरवाइज स्कैमर्स आपका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो ज्यादा आपके पास नहीं आ सकते। एंड आई एम श्योर अबाउट मुंबई पुलिस, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। सोनाली जी, बस एक आखिरी चीज, बड़े सारे लोग हैं छोटी मोटी चीजों में फंसते रहते हैं, उनमें वो शक्ति नहीं आती किसी से बात करने की, है ना? क्या उनको बोलना चाहोगे उन सबको जो शायद कहीं ना कहीं किसी चीज से गुजर रहे हैं इस वक्त? मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद से मत हारिए। जब आप खुद से हारेंगे तो सब कुछ खत्म है, वरना पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, आपको उसमें से निकाले। कोई ना कोई भगवान के रूप से आपके सामने आता ही है और आपको वहां से खींच कर बाहर लेकर आता है। तो इसके लिए खुद से मत हारिए, खुद से हार गए तो सब कुछ खत्म। मैं एक चीज पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपनी बात बाहर कही तो उसके बाद हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने सर और मैं उनकी वाइफ है उनसे ही कहा, तो उन्होंने कहा मुझे कि यहाँ से बाहर निकलो, अगर तुम अंदर ही रहोगी तो अंदर घुट के मर जाओगी और कुछ नहीं दिखेगा, तुमको सिर्फ सुसाइड करना ही सही लगेगा। और उस वक्त वही हो रहा था कि मैं आज सुसाइड करूँ कि कल। मैं फ़ोन को हाथ लगाने के लिए डर रही थी, क्योंकि अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे, कॉल उठाओ तो वही बातें तो एक असर कर जाती है। तो तभी मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बाहर निकलो, इनसे बात कीजिए। निखिल सर से बात की तो उन्होंने मुझे बहुत उसमें से बाहर निकाला और रास्ता दिखाया कि कैसे सरवाइव करना है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक 1800 लोगों को काउंसिल करके उनकी जान बचाई है। एंड बहुत बार हम मीडिया में भी आ चुके हैं और हम हर बार कहते हैं कि
कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो आप ऐसी कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों को बताएं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, अदरवाइज हम है ही। थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। और मतलब सच में ये काफी इंस्पिरेशन, तो मैं क्या कहूँ, कहीं वो हिम्मत मिलेगी लोगों को अपनी बात किसी से शेयर करने की। सही इसके बात बाद है, मैं आज भी ये बात करने के लिए इतनी शिवर हो रही हूँ, आज भी। बट आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना लोगों को हिम्मत मिलेगी इसके लिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मतलब सुशी सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस टॉपिक पे मूवी बनाई, क्योंकि इसे शायद सर ने जैसे बोला कि उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, तभी जाके उनको ये जैसे कि ये मूवी की आइडिया आई थी। मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस है जो न्यूज़ मीडिया भी शायद नहीं लेती होगी, क्यों लोग अपने आप को मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो ये मूवी आई एम श्योर बहुत से लोगों को हिम्मत देगी। Thank you so much. Thank you so much. On that note, I'd like to invite the producers one more time, ladies and gentlemen. Mr. M. Ramesh Reddy साहब, मैं चाहूँगा आप प्लीज मंच पर आएं, and मंजरी सुशी गणेशन जी one more time, because जो आपने करेज दिखाया है सोनाली जी, सबको मैंने कहा ना कि एक तरीके से हिम्मत दी है, you've given all the people a lot of courage, उसके लिए यहाँ पे ये सब आपका सम्मान करना चाहते हैं। And we have this check on us जो कि इस टीम की तरफ से, प्रोड्यूसर साहब की तरफ से, of course यहाँ पे देंगे। प्लीज डू दी ऑनर्स। घुसपैठिया का ये एक चेक है 51,000 रुपीज का, लेडीज एंड जेंटलमैन। रेडी साहब, वी हैव अ मार्कर। साइन करेंगे, वील जस्ट साइन द थिंग। या Please put your hands together for Team Ghuspetia for this very, very noble thing, ladies and gentlemen.